Now some tragic news coming in from Rajasthan. At least 4 people have died while 20 others have been injured. Now this is after a roof of a government primary school collapsed in Chalawar's Piplodi village in Rajasthan. Now the incident occurred at the government higher primary school building in Manohar Thana area. Many children were buried under the debris when the roof gave away. Rescue operations are still underway at the site with officials using JCB machines to clear the rubble. Visuals on your screen showing you the collapsed roof at the government building. Now, while injured children are being shifted to the community health center for treatment, local police and officials, they've reached the site. The rescue operations are underway. But unfortunately, at least 4 people have already died and 20 others who've been injured. They've been taken to hospital for treatment. Now this is the latest we're getting in on this roof collapse that took place in Rajasthan. At least 4 people have died and 20 others are injured. Now the incident took place at a government primary school. The school is located in Manohar Thana area. Many children were buried under the debris when the roof gave away, unfortunately. The rescue operations are still underway at the site. Police and other officials have reached the spot. In fact, the death toll has unfortunately increased. About 6 people have died and over 30 are injured. This is the latest we're getting in. This is after the roof of a government primary school collapsed in Chalawar's Piplodi village of Rajasthan. The injured have been shifted to hospital and about 30 people have been injured in this tragic incident. Meanwhile, 6 people have lost their lives. As we speak, rescue operations are underway at the site. They're trying to clear the debris and see if more people are trapped. Now my colleague Dhwaj Arya is joining me on this story. Dhwaj Arya, please हमें बताएं अभी रेस्क्यू ऑपरेशंस किस स्टेज पर हैं और आपको क्या लेटेस्ट जानकारी मिल रही है इस ट्रैजिक इंसिडेंट के बारे में? देखिए, ताज़ा जानकारी मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी अभी तक जो मौत का आंकड़ा है वो 7 के आसपास पहुंच चुका है। 7 बच्चों की मौत हुई है और करीब 24 से ज्यादा बच्चे हैं वो घायल हैं, अस्पताल में एडमिट हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, सारे बच्चों को निकाला जा चुका है और ये जो हादसा हुआ उस वक्त जो है 32 बच्चे स्कूल में मौजूद थे, ये जानकारी मिल रही है। एसपी अमित कुमार जो कि मौके पर पहुंचे हैं, सिविल डिफेंस की टीम ने पूरा ऑपरेशन जो है 3 से 4 घंटे ऑपरेशन चलाया और सभी बच्चों को बाहर निकाला। ये जो घटना हुई है, ये तेज बारिश की वजह से जो बिल्डिंग की हालत थी, पुरानी बिल्डिंग थी और जर्जर हालत थी, इसके कई बार कंप्लेंट भी जो है की जा चुकी है और उसके साथ साथ में इसकी जो है सुनवाई कहीं नहीं हुई। उसके बाद जब तेज बारिश हुई तो ये पूरा हादसा हुआ। Sorry to interrupt you, Dhwaj Arya, just for a minute, but we're also being joined by the Education Minister of Rajasthan. Sir, please help us understand here what exactly happened. Why were the maintenance and repair work not taking place in this building? आवाज नहीं आ रही है सर, हमें प्लीज बताएं कि क्या इस बिल्डिंग, ये जो स्कूल बिल्डिंग थी, गवर्नमेंट स्कूल बिल्डिंग, इसमें कोई रिपेयरमेंट वर्क नहीं हुआ था? ये बहुत ज्यादा पुरानी बिल्डिंग थी, हमें ये जानकारी मिल रही है। ये हमने जांच के निर्देश दे दिए। हमारे जो शासन सचिव हैं वो मौके पर पहुंच गए होंगे। जिला कलेक्टर भी वहाँ है और सब अधिकारी वहाँ। ये जांच का विषय है, इसकी जांच के निर्देश देते हैं क्या हुआ कैसे। जांच का विषय जरूर है और जो क्वेश्चंस हैं वो इन्वेस्टिगेशन के बाद आंसर होंगे, लेकिन एक जवाबदेही भी बनती है इस समय कि पहले क्यों कोई स्टेप नहीं लिया जाता है। इसके बाद कोई इंसिडेंट हो जाए, जब लोग अपनी जान गंवा देते हैं, तभी हम कोई जांच बैठाते हैं। देखो क्या है, हमने 2 जुलाई को भी एक हमारे यहाँ से परिपत्र जारी करके सबको निर्देश दिए थे कि बरसात हो रही है, ऐसी स्थिति में यदि कोई जर्जर भवन हो या ऐसे कोई लगता है कि इससे नुकसान हो सकता है,
ऐसे भवनों में बच्चों को नहीं बिठाया जाए। हम्म। ये पिछले साल भी निर्देश जारी किए थे और इस बार इन्होंने निर्देश जारी किए थे। तो फिर इस स्कूल में वो जो गाइडलाइंस जारी की गई थी, क्या वो फॉलो नहीं हो रही थी? हमने कहा है जांच का विषय है, जांच करवा रहे हैं। धन्यवाद मदन जी हमसे जुड़ने के लिए और हमें सारी जानकारी देने के लिए। Now my colleague ध्वज आर्या continues to stay with us on this story. ध्वज, आप हमें बता रहे थे कि अभी लेटेस्ट क्या आ रहा है रेस्क्यू ऑपरेशंस को लेकर, प्लीज कंटिन्यू करें। देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और जो एसपी अमित कुमार हैं वो अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे थे। सिविल डिफेंस की टीम वहां पहुंची थी। स्थानीय ग्रामीण जो मौके पर थे उन्होंने पूरी तरीके से जो है ये जो मलबा था इसको हटाने में उनकी मदद की है और 7 बच्चों की मौत हुई है। 24 से ज्यादा बच्चे अभी जिला अस्पताल में भर्ती हैं और कुछ बच्चों की हालत है वो गंभीर बताई जा रही है, यानी कि मौत का आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। और ये जो स्कूल में जब क्लास चल रही थी तो 32 बच्चे उस वक्त जो है मौजूद थे। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री देर में जो है यहाँ पहुंचेंगे और ये पूरी जो स्थिति है और हालातों का जायजा लेंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये जो तस्वीरें हैं एजुकेशन मिनिस्टर को देखनी चाहिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को देखनी चाहिए कि लगातार कंप्लेंट मिल रही है स्कूलों की, लगातार बच्चे चिट्ठी लिख रहे हैं, लगातार जो स्कूल प्रशासन है वो चिट्ठियां लिख रहा है कि स्कूल की जो बिल्डिंग है उसकी हालतें जो खराब है उनको सुधारिए। लेकिन सरकार की तरफ से क्या इस हादसे का इंतजार किया जा रहा था? ये जो हादसा हुआ है बड़ा हादसा हुआ है और ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि जो प्रशासन है वो कितना जो है पूरी तरीके से इनकी बात नहीं सुन रहा था और प्रशासन कितना ज्यादा जो है पूरी तरीके से अपनी आंख नाक कान और जो अपना प्रशासन जो है सब कुछ बंद करके बैठा हुआ था। यानी कि ये तस्वीरें बताती हैं कि ये इसके जिम्मेदार जो है यहाँ का लोकल प्रशासन है, खुद एजुकेशन मिनिस्टर है और सरकार जिम्मेदार है कि जो जिस तरीके से हालत हुई है और जिस तरीके से 7 बच्चों की मौत हुई है और टीचर भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और ये जो हादसा था ये हादसा अपने आप में ये बता रहा है कि सरकार का फेलियर है।